Hello, everybody. Love to everybody and the whole earth, the galaxy, each atom inside, outside of me, everywhere, anywhere, all pervading love, love prana. Since love prana is a bridge towards achieving meditation, will to die, will to life, will to live life. सबको प्रणाम और सबको बहुत बहुत प्रेम। पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड, आणविक, अणु, अंदर बाहर, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, सेतु, सबको प्रेम 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 प्राणा। देखिए, इस समय लाइट नहीं है और इसलिए मेरा चेहरा इतना साफ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ और कोशिश कर रहा हूँ जो थोड़ी बहुत खिड़की से लाइट आ रही है उसके अंदर आप मेरा चेहरा कुछ देख पाए। अन्यथा इतना भी जो दिख रहा है काफ़ी। ये वीडियो समर्पित है, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है और बहुत ही अप टू डेट है, अपडेटेड है। और इसमें जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, वैसे मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी और मैं चाहूँगा कि जो लोग नए हैं उनको सारी की सारी गाथा एक ही वीडियो में समझ में आ जाए। मेरी हमेशा एक कोशिश रही है कि 1-1.5 घंटे की वीडियो में सारा का सारा मैसेज आ जाए, कुछ रह ना जाए। Because in 1 hour and 1.5 hours time, I really consider that the whole message and the whole practicality of the message is very clear to the world around me and people who are thirsty of experiencing truth. And rather than putting my message out there in small cut pieces, so it's very compulsive. Okay, I am, by the way, Swami Premzo Aruposh. I would very much like to declare myself as world teacher, yes. I don't know, somehow I am a little touchy about using the word master, क्योंकि मास्टर शब्द में और टीचर शब्द में मैं थोड़ा फ़र्क करना चाहता हूँ। टीचर वह है जिसका अभी भी हृदय खुला है सीखने के लिए, और खुला ही नहीं है बल्कि वो ईमानदारी से ये भी कह देना चाहता है कि अभी भी शायद कुछ बाकी होगा तो मैं सीखता चला जाऊँगा। तो वह टीचर होता है और जो ये कहता है, लेकिन ये कहते ही उसके अंदर का जो मास्टर है वो दरअसल वही सब चीज़ बुलवा रहा है अपने ही अंदर वाले टीचर से। तो you see the difference between teacher and master. Master is that of a person who is perfect, who cannot be added upon more perfections, and teacher is the one who has still got his heart and mind and brain open to learn more, and the acceptance of imperfections and maybe the honesty of it that one can still learn makes one a teacher. So here we are, and this is like this.
and the easy-going words which I use and very spontaneously and without any pressure must not be taken that easily by the listener. I hope this way. I hope this way because I'm liberal enough to expect, I hope, I judge, I do everything in daily life, in daily extroverted life. But when it comes to introverted life, introverted psychology, then there is no hope, no expectation and no judgment, because these words do not work. But when we come to extroverted lifestyle, all these words have got great meaning, and they also allow you to be a human being. The very acceptance that I expect from the other human, from the existence, the very acceptance that I expect from the other human, and I judge the other human, and I also judge myself on extroverted things, make me a human. क्योंकि मैं सबसे उम्मीद करता हूँ, मैं सबसे एक उम्मीद करता हूँ, सबसे एक एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, और ये स्वीकृति ही मुझे एक इंसान बनाती है. और जजमेंट, मैं सबके प्रति एक जजमेंट रखता हूँ, यानी कि एक खुली आँख रखता हूँ कि कोई आदमी गलत है कि सही है, और अपने आप को भी मैं इस दायरे में लाता हूँ कि मैं सही हूँ या गलत हूँ. तो इतनी इस बात की स्वीकृति ही मुझे इंसान बना देता है. क्योंकि बहुत से लोग हैं इस बात पे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, और ख़ास करके दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ कैपिटलिस्ट पीपल. यू सी, पूंजीवाद. ये पूंजीवादी लोगों ने ऐसा हंगामा मचा रखा है इस दुनिया में, नर्क पे नर्क बनाए चले जा रहे हैं कोई भी बहाना लेके. और these capitalists, you know, they have created such nuisance and such hell on earth, for the entire earth and also for themselves, and they are the greatest fools of earth, which they have actually made of themselves, and with great excuses of making very good words like human mankind, human goodness, scientific inventions, scientific comfort, and in the name of religion, in the name of whatnot. But actually they just want to kill the earth. Who does not know the geography and history of Georgia guidelines? Yes, आप सबको इस बारे में मालूम होगा. जॉर्जिया गाइडलाइंस उसको कहते हैं. आप सब लोग इसको YouTube पे चेक कर सकते हैं. उसको कहते हैं जॉर्जिया गाइडलाइंस. प्लीज़, ओके, इसको आप टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा. ये जॉर्जिया एक छोटा सा कंट्री है, रशिया के साथ में ही है, और वहाँ पर इन्होंने बहुत बड़े बड़े स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े पत्थर, तकरीबन मैं समझता हूँ 50-60 फुट का एक पत्थर है. एक ही पीस है, सिंगल पीस है, उसमें कई पत्थर एडेड हैं, कम से कम 8-10 पत्थर हैं. उन पत्थरों के ऊपर इन्होंने अलग अलग भाषाओं में 10 कमांडमेंट्स लिखी हैं. ये ईसाइयत ने किया है बेसिकली, और ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब कुछ यूट्यूब पे आज से 15 साल 16 साल मैं समझता हूँ 20 साल पहले से दिया हुआ है. 20 साल पहले से ये सब पत्थरों के ऊपर अलग अलग लैंग्वेजेस में ये लिखा हुआ है, और वो 10 कमांडमेंट्स लिखी हुई हैं, जिनमें से एक कमांडमेंट तो सीधा ये लिखा हुआ है कि हम लोग 7-8 अरब की जनसंख्या से सब लोगों को मार करके 2 अरब की जनसंख्या ही चाहते हैं इस धरती के ऊपर. यानी बाकी 5 अरब 6 अरब जनसंख्या हम किसी ना किसी रूप में
मार ही देंगे। ये प्रण इन्होंने किया हुआ है, जितने भी पूंजीवाद लोग हैं, जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, इन द नेम ऑफ क्रिश्चियनिटी, एंड दीज आर द 10 कमांडमेंट्स माय डियर फ्रेंड्स, एंड देयर इज़ नो लाइज अबाउट इट। इसमें कोई झूठ नहीं है। ये पेपर्स आज से 17 साल पहले मैंने कंप्यूटर से निकाल लिए थे और आज तक मेरे पास हैं सबूत के तौर पर, और अब ये आप खुलेआम यूट्यूब पर देख सकते हैं। और आज से 17-18 साल पहले जब किसी को इस बात की कोई मालूमात नहीं थी, एरा गैरा क्या, मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ में एक ही आदमी जानता होगा। मैं समझता हूँ उनमें से मैं कुछ मैं ही एक भाग्यशाली आदमी था। मैं समझता हूँ कि 17-18 साल पहले ये पेपर मेरे हाथ लग गए थे कंप्यूटर के अंदर बैठे बैठे। सो दिस इज़ कॉल्ड जॉर्जिया गाइडलाइंस, और उसमें से एक कमांडमेंट ये कहता है कि हम धरती की जनसंख्या 2 अरब चाहते हैं, और उसके अंदर और भी 8-9 कमांडमेंट्स है, वो आप खुद ही पढ़ लीजिए। एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए पूरी धरती पर, और सारी लैंग्वेजेस ख़त्म कर देंगे, सारी भाषाओं को ख़त्म कर देना चाहते हैं, सिर्फ एक ही भाषा चाहते हैं। मैं समझता हूँ वो भाषा इंग्लिश ही होगी। और मारने का तरीका भी वहाँ दरअसल लिखा हुआ है। मारने का तरीका ये है कि दे आर गोइंग टू मेक सच केमिकल processed smelling compounds. I think they go by the nose and maybe they go through their pores, और ये केमिकल्स इस तरीके से फैलाए जाएंगे मौसम दर मौसम, और दूसरा कुछ कह भी नहीं पाएगा। आपको लगेगा कि ये मौसम का बुखार है, ये मौसम की खांसी है, ये मौसम का ये है, ये मौसम का वो है, ये मौसम का पेट दर्द है, मौसम की आपको अगर टट्टियाँ लग गई हैं तो आपको लगेगा कि ये मौसम की डायरिया हो रहा है, ये सब। लेकिन ये कुछ भी मौसम से रिलेटेड नहीं है, ये किया जा रहा है। क्योंकि मौसम से हुई चीज़ें जो स्वाभाविक होती थी किसी टाइम पर, उसका बहाना लेकर के इसको 20 गुना, 50 गुना, 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, और आदमी इस पे डाउट भी नहीं कर पाता। आम आदमी की अकल वहाँ तक नहीं जा पाती, और वो ये सोचता है कि मौसम बदल रहा है इसलिए ये बुखार मुझे आ रहा है। दरअसल वो बुखार का सिर्फ बहाना है। इस तरीके से खासकर ये पूरे दुनिया में ही नहीं फैलाया गया, पूरी दुनिया में तो फैलाया गया, लेकिन बहुत ज़ोरों शोरों से भारत जैसे, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान भी होगा इसमें, और मैं तो नहीं गया कभी उधर, लेकिन इस टाइप के देशों जो भी थोड़ी जो ज़्यादा जहाँ पे अंधविश्वास है, वहाँ पे इस टाइप की चीज़ें ज़रा ज़्यादा ज़ोर शोर से फैला दी गई हैं। और उसमें आदमी ये सोचता है कि वो स्वाभाविक तौर पे उसको हार्ट अटैक आ रहा है, स्वाभाविक तौर पे उसको कैंसर हो रहा है, स्वाभाविक तौर पर उसको दूसरी अन्य बीमारियाँ हो रही हैं। दरअसल वो स्वाभाविक कुछ भी नहीं। एक ज़माना था जब व्हेन आई यूज्ड टू थिंक कि लाखों घरों में एक आध आदमी को कैंसर होता था तो हमें अचंभा हुआ करता था, लेकिन आज जो है कैंसर जो है, आप समझिए कम से कम 100,000 घरों के बीच में एक कैंसर का आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये तो स्टेटिस्टिक्स कह रहा है, मैं नहीं कुछ भी बोल रहा। ये सब चीज़ें यूट्यूब में दी गई हैं, ओके। And all these diseases which are coming like diabetes is now once in 5 people everybody's got diabetes, everybody has got cancer, everybody one in 1000 people have got cancer, okay. Arthritis, heart attack, blood pressure, ये सब आप 20 साल की उम्र से 15 साल के बच्चों के अंदर भी ये चीज़ें आप पाएंगे, बल्कि 10 साल के बच्चों में भी डायबिटीज़ पाया जा रहा है। एंड ऑल दिस, ये सारी की सारी देन ये रिलीजन्स की है, ये धार्मिकता की है। बेसिकली वेरी इम्पॉर्टेंटली these fanatics, these orthodox people, you know, they're blind, अंधविश्वास, अंधाधुंध चलने वाले धार्मिकताएं, इन लोगों ने ये चीज़ फैलाई है, और खुद को तो मार ही रहे हैं, बाकियों को भी मार रहे हैं, और बाकियों को तो मार ही रहे हैं, खुद को भी मार रहे हैं। इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी और इतनी ज़्यादा फुलिशनेस
इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ आवर ह्यूमन बींग्स। हमारी जो मानवता है उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस कदर इतनी बेवकूफ़ियाँ करेगा। और दरअसल मरने मारने की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं थी, मरने के लिए लाइन में तो हम वैसे भी खड़े हुए हैं, इसको इतनी परेशानी करने की ज़रूरत क्या थी? अरे थोड़ा 60-70 साल 80 साल वेट करो, बाकी सब मरने वाले ही हैं। तो ये सब अपने सिर पे लेने की ज़रूरत क्या थी? इतनी बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत क्या है? बुढ़ापा सबको आ रहा है, पहले ही सबका लाइफस्टाइल इतना ख़राब है। दे हैव गॉट रॉन्ग फुलिश लाइफस्टाइल्स टू लिव, they are automatically ending up result into old age, and old age is such a thing which ends up into disease, and the disease is such a thing which ends up into death. तो देखिए ये जो श्रृंखला है, ये श्रृंखला से हर कोई बंधा हुआ है। हम काम शक्ति का प्रयोग नहीं जानते हैं, हम अपने अहंकार की वृद्धि नहीं चाहते हैं, उसकी वजह से वृद्धावस्था जल्दी आती है। वृद्धावस्था के दौरान में बीमारियां आती हैं और बीमारियां के बाद में मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो इतना सब सोचने की क्या ज़रूरत थी? इसमें इतना कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है, ये तो बहुत सीधी सादी बातें हैं। लेकिन गणित तो तब इस्तेमाल करना पड़ता है जब हम अपने आप को जागरण के रास्ते पर लेके जाएं, तब आपकी सोच विचारता शुरू होगी। इसमें कोई सोच विचार नहीं है, बाकी जो हम चल रहे हैं। So what I mean here is that all the lifestyle. So I have basically created a lifestyle through this education system, and my education system, the name of the education system is Prem Josh Aham Brahmasmi Immortality Self Criterias Quantum Education System. So ये एक एजुकेशन सिस्टम है। मैं स्वामी प्रेमजो अरूपोश, ये नाम मेरा, मैं दीक्षित हूँ ओशो जी से 1980 में। और उसके बाद मैंने एक मनोवैज्ञानिक दीक्षा ली है परमहंस योगानंदा जी से, और फिर एक दीक्षा मैंने दैहिक रूप से भी ली है, वो है तमिलनाडु के वेदात्री महर्षि जी से। 3 गुरुओं से मैं दीक्षित हूँ। और वैसे मैं जल्दी ही उम्र में अपने आप को दीक्षित मैंने पाया अपना श्री कृष्णा, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। दरअसल आप कह सकते हैं कि मेरे नाना ने मुझे दीक्षित कर दिया था, अनायास ही, मेरी जानकारी के अंदर नहीं था, पर ये बाद में ये रहस्यात्मक चीज़ मेरे सामने खुद खुली कि एक्चुअली मैं दीक्षित, वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। और इस दौरान में, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में था, क्रिश्चियन स्कूल में था, इसलिए मुझे ईसाईयत में भी दीक्षा दी गई। तो मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि मैं कई रास्तों के लोगों से मेरे को मिलने का सौभाग्य मिला। आई कुड अंडरस्टैंड जीसस क्राइस्ट, एंड क्योंकि मैं सरदारों की फैमिली में पैदा हुआ था, तो आई कुड अंडरस्टैंड गुरुद्वारा एंड नानक, and then Vedatri Maharishi, Paramahansa Yogananda, and then Brahma Vishnu Mahesh, the whole Hinduism, and then Osho जी। So Osho जी ये तो आप कह सकते हैं कि ये हर तरीके से ज्ञान योग कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ज्ञान योग के अंदर ये मेरे बहुत ही घनिष्ठ तरीके से मेरी विचारधारा, मेरा जो तर्क है, इन्होंने मेरी बड़ी सहायता करी। इस तर्क के ऊपर जल्दी से पहुंच गया, नहीं तो हो सकता है मेरे को 10-20 साल और लग जाते तर्क जुटाने में। और तर्क तो देखिए, तर्क होता है 2 + 2 4, 2 और 2 4 ही होते हैं। ना तो आप उसको 5 कर सकते हैं, ना आप उसको 3 कर सकते हैं। और अगर आप कर रहे हैं तो करते बने। अपनी मौत खुद आप अगर अचेतन रूप से मरना चाहते हैं तो मरते बने, लेकिन 2 और 2 4 होते हैं, इस बात को याद रखना। तो आपको कोई भी लॉजिक, कोई भी तर्क घुटने टिकवा के मानना पड़ेगा मृत्यु से पहले। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू से येस टू 2 + 2 4, इट इज़ एंटायरली ऑन योर अनकॉन्शियस माइंडसेट्स। एंड उसका नतीजा यही होगा कि जो आपको
मानव होने के नाते जो आपको फ़ायदे और जो अंतिम फ़ायदा अहम ब्रह्मास्मि, समाधि, ध्यान, ये सब शब्द मात्र रह जाएंगे, खोखले शब्द मात्र रह जाएंगे। आत्मा, अमरता, ये सब खोखले शब्द रह जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। और इससे आपको ये नुकसान हो जाएगा कि ये सिर्फ खोखले शब्द रह जाएंगे, और नहीं तो आप इन सब चीज़ों को पा सकते हो। ये जो कहावत है करोड़ों में एक को मिलता है, ये सब कहावतें छोड़ो, ये अंधविश्वासी लोगों ने ये कहावतें फैलाई हैं। दरअसल हर आदमी के अंदर ब्रेन है, हृदय है और ब्रेन है, और हर आदमी सक्षम है ध्यान साधनाओं की दुनिया को अंगीकार पाने के लिए एंड उपलब्धि के लिए। So let's go to the next point here, my dear friends. Okay. So you see, one of the things is very important, hierarchy. हायरार्की एक बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है। मैंने कुछ पिछले वीडियोस में बोला था, मैनिपुलेशन एक बहुत ज़रूरी शब्द है। मैनिपुलेशन। अब एक शब्द और है हायरार्की। हायरार्की का मतलब है कि अहंकार के अलग अलग लेवल्स, अहंकार के अलग अलग स्टेजेस, अहंकार के अलग अलग जो लेवल्स हैं, ये हमारी धरती के ऊपर ऑटोमेटिकली, मतलब सहज ही होते हैं। देखिए, एक छोटे बच्चे का अहंकार है कि उसका अहंकार वहाँ तक होता है कि जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वो मेरा मेरा करता है और उस खिलौने के लिए लड़ता है। और मान लीजिए उसको आग के बारे में नहीं मालूम, मोमबत्ती से खेलने लगता है, आग से जल जाता है, उसको लगता है मेरी उंगली जल गई। उसको भूख लगेगी, वो माँ के लिए रोता है, उसका अहंकार ये शिकायत कर सकता है कि मुझे दूध टाइम पे नहीं मिला, और रो सकता है इस बात के लिए, झगड़ा कर सकता है। अहंकार धीरे धीरे विकसित होता और कई चीज़ें हमें बचपन से ही दी जाती हैं, सारी की सारी धारणाएं। उनमें से एक ख़ास धारणा ये दी जाती है जो कि बच्चा लेके नहीं आता है, और वो ये है कि अंधेरे से डरना। हम अंधेरे से जानबूझ के बच्चे के अंदर डर डालते हैं, और वो फिर समझ जाता है कि अंधेरा कुछ ऐसी चीज़ है जिससे दिल सुकड़ जाता है और फिर वो डरने लगता है। ठीक उसी तरीके से भूत प्रेत, हवा, बाबा, ये वो जितने भी शब्द बने हैं, ये सब हम बच्चे को इसलिए डराते हैं ताकि वो हमारा कहना मान जाए। एक शब्द है ब्रेन। ब्रेन हमारे सिर के अंदर का वो हिस्सा है जो कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स रखता है, जैसे कि रेल के डिब्बे होते हैं। अब मान लीजिए एक रेल के अंदर 50 डिब्बे हैं या 20 डिब्बे हैं, ठीक हमारे ब्रेन के अंदर भी 20-50 किस्म के अलग अलग डब्बे बने हैं, और हर डब्बा अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट के बारे में सोच विचार करता है, एक तर्क करता है। मान लीजिए विज्ञान है, जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो समझ लो हमने विज्ञान वाला डब्बा खोल दिया। हम इतिहास के बारे में बात करते हैं, वो डब्बा खोल दिया। हम अपना रोज़ के जीवन यात्रा के बारे में बात करते हैं तो हमने तीसरे किस्म का डब्बा खोल दिया। आज क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हमने उस किस्म का डब्बा खोल दिया। समाज शास्त्र हुआ, इकोनॉमिक्स हुई, आर्ट हुआ, ये बहुत प्रकार के आप समझिए कंपार्टमेंट्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर जो बने हुए हैं, और हम जिस कंपार्टमेंट को रेफ़र करते हैं वो डब्बा खुल जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, ब्रेन के संग एक शब्द जुड़ा है माइंड, विचारधारा। बड़े मज़े की बात यह है कि हम सबका ब्रेन एक सा है। ब्रेन के अंदर के जो अणु हैं वो सबके एक से बने, एक ही। अगर हम उसको एक्सरे करेंगे मशीन के अंदर तो उनकी जो बनावट है, उनकी जो सेलुलर क्रिएशन है, it has been created all into one. You see, all the brains are the same. They are created same by the existence. प्रकृति ने एक सा ब्रेन बनाया है सबके पास। लेकिन मज़े की बात यह है कि माइंड सबका अलग अलग है। माइंड ब्रेन के अंदर है पर ब्रेन नहीं है, और
माइंड और ब्रेन में अगर हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो ब्रेन स्वाभाविक है, नेचुरल है। माइंड बनावटी है। माइंड स्मृति है, मेमोरी है, जो मेमोरी से आता है, जो स्मृति से आता है। और ब्रेन और माइंड के मध्य का हिस्सा होता है, वो है उससे हम सपना विकसित करते हैं। रात को जब हम सपना देखते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमने ये सपना हमने तो नहीं बनाया। हमें लगता है ये पता नहीं कौन सा सपना है, कैसे आया कैसे नहीं। दरअसल वो ब्रेन और माइंड के बीच का सेतु है जो हमने वास्तव में नहीं बनाया, पर वो ब्रेन के बारे में कुछ कहता है। यू सी, इट इज़ कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। इट इज़ कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड, यानी एक है अचेतन और एक है चेतन। ये दोनों के बीच का जो मध्य है वो है सपना, वो है ड्रीम वर्ल्ड। ये सपना हमको अचेतन की ओर भी ले जाता है और चेतन की ओर भी ले जाता है। ये सपने का हम क्या इस्तेमाल करते हैं वो हमारी बुद्धिमत्ता है कि हम उसका क्या इस्तेमाल करते हैं। हम उसको अंधविश्वास की ओर भी ले जा सकते हैं, हम उसको अपने जागृति के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। So here we go. In our education system, the differences between brain and mind. And brain actually accepts the mind, but mind has been created in such a way that it never accepts the brain. मजे की बात यह है कि हमारा जो माइंड है वो हमारे ब्रेन को स्वीकार करने नहीं देता, और ब्रेन हमारे माइंड को स्वीकार करता है। आप यूँ समझिए कि ब्रेन सर्वोपरि है, सर्वे है, और माइंड उसके माध्यम में छोटा है। पर बिल्कुल उल्टी बात होती है, लेकिन एक तरीके से सही भी है, क्योंकि माइंड की अकड़ ज़्यादा है। क्योंकि माइंड खोखला है इसलिए अकड़ता है, ब्रेन बहुत बड़ा है इसलिए अकड़ता नहीं। तो ब्रेन तो माइंड को स्वीकार करता है, पर माइंड ब्रेन को स्वीकार नहीं करता। ब्रेन कहता है कि पूरी धरती एक है, पूरी सृष्टि एक है, लेकिन माइंड कहता है नहीं नहीं, मैं तो भारतीय हूँ। क्योंकि वो स्मृति से आ रहा है ना, वो मेमोरी से आ रहा है। मैं भारतीय हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। उसका मतलब कम से कम आप 199 परिभाषाएं सुन लें आप अपने बारे में, लेकिन ब्रेन कोई भी फालतू बात नहीं करेगा। ब्रेन उतनी ही बात करेगा जितनी जायज़ है, जो तथ्य है। ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा कि भैया मैं केमिस्ट्री हूँ, बायोलॉजी हूँ, फिज़िक्स हूँ, साइकोलॉजी हूँ, और मैं पूरी सृष्टि हूँ। क्योंकि वो देख सकता है कि हम हवा, पानी, धरती, आकाश और इन्हीं चीज़ों से हम बने हैं। हमारा जो शरीर है इन चीज़ों से निर्मित है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई जो हवा है वो अमेरिका की दूसरी हो गई और यहाँ की दूसरी हो गई? हवा तो एक ही है, सब तरफ एक ही बह रही है। पानी भी एक ही है, सब तरफ एक ही बह रहा है जी। वहाँ भी सूरज एक सा ही निकलता है, यहाँ भी सूरज एक सा ही निकलता है। तो ब्रेन उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करेगा जो तथ्य है, बाकी बेकार की बकवास को तथ्य नहीं स्वीकार करेगा। और वो माइंड को, जो भी माइंड बोलता है उसको बकवास करने देता है। ब्रेन चुपचाप सुनता रहता है, चुपचाप एक साक्षी भाव है ब्रेन के अंदर। इसलिए हमारा अंदर जिसका विवेक थोड़ा भी जागा हुआ है, वो अंदर कहीं ना कहीं ज़रूर देखता रहता है कि वो कितना दिन में झूठ बोलता है, कितना सच बोलता है, और कितना वो अपने आप को झुठलाता है, कितना वो किस वजह से हाँ या ना करता रहता है। ये ब्रेन को अंदर कहीं ना कहीं ज़रूर पता होता है, जो थोड़ा सा भी जागरूक पुरुष। So here we are, and when we see this, and because our body has actually been constructed by all these elements like air, water, sky, and air, what do you call air, water, sky, and fire, and soil. And because they're all everywhere, so definitely our brain says yes to only those factualities, those facts, but it never would accept the
the unconscious definitions made by the mind. Because mind is coming from a very different concept. It is coming from a dream world. It is coming from a memory. It's a part of mind is a memory. It's a memory concept. It's a memory concept, and the brain is not a memory concept. It is, or we can say that brain is a memory coming from elemental, basic, fundamental actuality. Okay, and mind makes a different history. It is historical. It is very memory. The memory comes from survival. It is coming from the survival level, right from the past. Maybe it is 1 lakh years. हो सकता है 1 लाख साल पुराना माइंड हो सकता है 10 लाख साल पुराना माइंड हो, पर जो ब्रेन है उसकी यात्रा तो समय से उसका कोई लेना देना नहीं है. वो अनंत यात्रा है. ब्रेन की यात्रा अनंत है. करोड़ों करोड़ों वर्ष हो सकते हैं ब्रेन को डेवलप होने में, लेकिन जो हमारा माइंड है वो ब्रेन के कंपैरिजन में जो हमारा माइंड है वो एक बच्चा है. इसलिए देखिए, सो दिस इज द होल थिंग दैट द माइंड अपोजेस द ब्रेन एंड इट अपोजेस द हार्ट and it opposes the entire truth. So recently I have been hearing all this in this our scientific video, and it was these people actually they had all these gadgets around the brain center, and they had all these plugs, electrical plugs, and around the brain, and they were saying about they were talking about something about free will, and these free will, I didn't understand about this free will. Actually, they were talking that does any individual have a free will to live? Wow. Now, you see, here I am declaring something, and this declaration goes directly to the scientific people all around the earth, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो जर्मनी में हो. जितनी भी रिसर्च डिपार्टमेंट है, मनोवैज्ञानिक रिसर्च डिपार्टमेंट है, ये मेरी जो बात है, ये मेरा जो तथ्य है, वहाँ तक पहुँचना चाहिए और पहुँचेगा. और ये आप समझिए कि ये अल्टीमेट है. और किसी को भी अगर मुझसे किसी बात को लेकर के बहस करनी है, आर्ग्यू करना है, किसी बात से मनन चिंतन करना है, ही इज़ मोस्ट वेलकम. यू सी, आई एम हियर रेडी टू टॉक टू एनी लेंथ. किसी कहीं तक भी मैं बात करने को तैयार हूँ. जो भी सत्य के पिपासु हैं, सत्य के अभीप्सा रखते हैं, जो सत्य को जानकारी रखना चाहते हैं, मैं उनके लिए मेरा खुला दिल है, और कृपया मुझसे बात कर सकते हैं कभी भी. और जो इन्होंने अपने ब्रेन के अराउंड में जो भी इन्होंने लगा रखे हैं, जितने भी इन्होंने तंतु लगा रखे हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स लगा रखे हैं, वो सिर्फ ये जानने के लिए कि भाई हमारी कोई स्वेच्छा है क्या, हम अपनी स्वेच्छा से कोई डिसीजन ले सकते हैं क्या, ये चीज़ें जानने के लिए इन्होंने ब्रेन के उसमें वो लगाया. देखिए, जितने भी पूंजीवाद लोग हैं, जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, जितने भी पूंजीवाद लोग हैं, जो पूंजी, जो पैसे के ऊपर will you please shut up man, come on. ये पूंजीवाद लोग हैं. मुझे कहना पड़ेगा कि ये एक शैतानियत का दिमाग है. हमारे अंदर बहुत ही अचेतन दिमाग है. ये किसी मुल्क या किसी व्यक्ति से लेना देना नहीं है. ये जो हमारे ऐतिहासिक रूप में जिसने भी ये पैसा सबसे पहले जिसने इन्वेंट किया है, बहुत ही बचकाना दिमाग ये रहा होगा. और ये बचकाने दिमाग ने तमाम पूरी धरती को इस कदर जकड़ लिया है, पकड़ लिया है कि उसके अलावा दूसरा कि व्यक्ति के पास दूसरी सोच ही नहीं रह गई है. और ये पूंजीवाद लोग, इनका दिमाग इतना ज़्यादा रिटार्डेड, आई मीन they have got such a retarded and stagnant mind style that they are trying to distract the whole thing from the real issues to another issue. और ये लोग सारी धरती को और सारी एजुकेशन सिस्टम को भरमाते रहते हैं और अपनी तरफ से ही सवाल बाज़ार के अंदर पेश करते रहते हैं, ताकि
बाकी सब लोग उन्हीं सवालों में मस्त हो जाएं, उन्हीं सवालों के अंदर व्यस्त हो जाएं, और बाकी ये लोग अपना अपना टंटा अपना अपना जो है डंडा पीटते रहें। यू सी। एंड ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हायरार्की, देयर इज दिस वर्ड कॉल्ड हायरार्की, दिस वर्ड हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ये अहंकार के तल पर जब हम दूसरे को चलाते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, दूसरे को चलाते हैं, दूसरे के ऊपर कंट्रोल करते हैं, ये माइंड जो है हमारी धरती पर एक छोटे बच्चे से लेकर के मैं समझता हूँ 8 अरब लोगों के अंदर यह बीमारी अच्छी तरह से फैल चुकी है कि हर एक छोटा बच्चा, हर कोई बड़ा बच्चा, हर कोई उससे बड़ा बच्चा, हर कोई क्लास का बच्चा, हर कोई एक धर्म से दूसरे धर्म का इंसान, हर कोई छोटे पैसे वाले से लेके बड़े पैसे वाला हो, छोटी मछली दूसरी बड़ी मछली हो, बड़ी से भी बड़ी मछली, फिर उससे बड़ी मछली, ये कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है, ये धरती पर ये बीमारी बहुत बुरी तरीके से फैल चुकी है और हड्डी हड्डी में घुस चुकी है। देखिए, एक झाड़ू मारने वाला वो छोटा हो जाता है, और फिर जो है एक शॉपकीपर है जो फल फ्रूट बेचता है, वो छोटा हो जाता है जी। जो जूते ठीक करने वाला, अ कॉबलर, अ शू कॉबलर, अ बार्बर, a broomster who is a cleaner, yes, and people who are into all kinds of jobs, a carpenter, and people, मतलब एक हमारी जितनी भी कर्म शैली है जो हमारी समाज के अंदर, when we have decided to make other the professions, we have made it one inferior and one is superior. यानी एक छोटा काम कर रहा है, एक बड़ा काम कर रहा है। ये बात आप जरा, आप सबके विचारों के लिए एक बहुत बड़ा मैं आपको विचार दे रहा हूँ कि आप ज़रा सोचिए कि क्या ये विचार ठीक है कि एक काम छोटा हो सकता है और एक काम बड़ा हो सकता है। क्योंकि इसमें मैंने जितने भी लोगों से बात करी है वो अभी तक मुझे एक ही तर्क सुनाते हैं कि अगर किसी डॉक्टर ने MBBS किया, अरे मेरे बाप दादा ने इतने पैसे दिए इसलिए मैंने MBBS किया है भाई। अरे भाई, तुमने MBBS, तुम्हारे बाप दादा के पास पैसे कहाँ से आए? वो बोले अरे हमारे उनके बाप दादा ने उनके बाप दादा से लिया। अच्छा, उनके पास कहाँ से आए? अरे कहीं ना कहीं तो लूटपाट करी होगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी आदमी शुरू से ही पैदा होता ही उसके पास में उतना पैसा है और फिर MBBS करके भी आपने क्या उखाड़ लिया? यू जस्ट टेल मी दिस पॉइंट कि आफ्टर डूइंग ऑल यू हैव अराउंड 1 करोड़ डॉक्टर्स ऑन दिस अर्थ। 1 करोड़ डॉक्टरों से ज़्यादा डॉक्टर हैं इस पूरी धरती के ऊपर। एंड यू टेल मी हाउ मच सेफ इज दिस वर्ल्ड आउट ऑफ डिजीज? आप सब 10 करोड़ 20 करोड़ जितने भी धरती के ऊपर डॉक्टर हैं, उन सब ने इस धरती को कितना सिक्योर रखा है? इस धरती को आपने बिना डिजीज़ के, बिना बीमारी के कितना रख सके हैं? आज घर घर खांसी है, घर घर बुखार है, घर घर ये है। आप डॉक्टरों ने क्या कर लिया? आपके MBBS डॉक्टरों ने या कोई भी डॉक्टरों ने? इससे बढ़िया तो पहले ही थे। अरे किसी कुत्ता बिल्ली को कैंसर होते देखा है? किसी बंदर को या किसी गाय को कैंसर होते देखा है? किसी को अर्थराइटिस होते देखा है? किसी को खांसी होते हुए देखा? किसी बंदर को खांसी करते हुए देखा है? Have you seen any of these reptiles, any of these snakes, any of these frogs, any of these animals that have they got cancer? Have they got arthritis or they've got diabetes? Tell me one thing. You got to be talking very actively with this point. You know why? Because this is the threshold of the whole thing, that when people were living very naturally, there were no diseases. जब आदमी स्वाभाविक तौर पे जीता है तो वहाँ बीमारियां नहीं होती थी, कम से कम बीमारियां होती थी। लेकिन जैसे जैसे आदमी अस्वाभाविक होता जा रहा है, जैसे जैसे आदमी अननेचुरल होता जा रहा है, वैसे वैसे आप बीमारियों का निर्माण कर रहे हैं, और वो निर्माण भी ऐसा भद्दा निर्माण कर रहे हैं कि उसका लेना देना ही कुछ नहीं है रह गया है हेल्थ से, बल्कि अब बीमारियों से ही जाती नज़र आ रही है धरती। कुत्ते, बिल्ली, गलेरियाँ, सांप, बिच्छू,
बंदर, गाय, जंगल के जंगली जानवर जिनको हम नीची नज़र से देखते हैं, पक्षी, जितने भी ये हैं, ये ज़्यादा सुखी और ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहे हैं आज। बल्कि ये अगर आपस में बात करते होंगे तो ये करते होंगे कि इंसानों ने ऐसी धूल मट्टी मचा रखी है कि हम भी बीमार पड़ने लग गए। नहीं तो मैंने कभी पहले, आज से 15-20 साल पहले, कभी गाय को लंगड़ाते हुए नहीं देखा था चलते हुए। कहीं इक्की दुक्की कोई हज़ारों में एक आध गाय दिखती थी कोई लंगड़ाते। अब तो आए दिन सब गायों को ही देखते हैं, कभी सारी गायें लंगड़ा रही हैं। आप कुत्तों को देखिए, कुत्तों की हालत ख़राब हो गई। अब तो मज़े की बात यह है कि मैंने 2-4 बंदरों को भी खांसते देख लिए कि तुम साले इंसानों के अंदर, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ने ऐसा वो मचा रखा है उधम कि एक अच्छे खासे जो जानवरों की जो एक स्वाभाविक भोलेपन की एक जो उनका जीने का जो था, उसमें भी आप घुस गए और उनको बीमार कर डाला। You just tell me, when a child is coming in this world and it takes birth on this earth, it is healthy, it's healthy. जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो हेल्थ के साथ ही पैदा होता है। मुझे तो नहीं लगा कोई कैंसर से कोई बच्चा पैदा होता, मुझे तो नहीं अभी नज़र आया कि कोई बच्चा पहले कैंसर से पैदा हो गया हो या डायबिटीज़ लेके। अरे जब वो बच्चा जन्मा था तब तो बिल्कुल ठीक ठाक जन्मा था। इसका मतलब प्रकृति ने माँ के पेट के अंदर वो सब सुविधाएं कर रखी हैं कि वो स्वाभाविक तौर पे ही हेल्दी पैदा हो रहा है। पर बाहर निकलने के बाद क्या हो जाता है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि वही जो मैंने आपको डिफरेंस बोला है, माइंड और ब्रेन का जो डिफरेंस है, हम उसको ऐसे संस्कार देने लग जाते हैं कि वो बीमार पड़ना चालू हो जाता है। जिस माँ ने अनहोनी अचेतन में बच्चे को जन्म दिया तो वो माँ खुद ही बीमार पड़ने लग जाती है, क्योंकि उसको यही समझ में नहीं आता है कि भाई वो स्वाभाविक है, उसकी कोख तो स्वाभाविक थी पर उसका दिमाग स्वाभाविक नहीं रहा। क्योंकि देखा गया है अगर औरतों में और आदमियों में कैंसर का, डायबिटीज़ का और ये जितना भी बीमारियों का जो लेना देना है, ये पुरुषों में और स्त्रियों में बराबर से है, बिल्कुल बराबर से है। कोई ऊंचा नीचा 1-8% का फ़र्क होगा, लेकिन कोख से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ पैदा हो रहे हैं, कोई कैंसर लेके पैदा नहीं हो रहा। ये एक अनहोनी घटना नहीं लगती आप लोगों को? ये डॉक्टरों को दिखता नहीं है, ये अंधे, ये साइकोलॉजिस्ट लोगों को दिखता नहीं है, मनोवैज्ञानिक लोगों को? Can't these doctors see, these psychiatrists, these psychologists, can't they see this? कि when they take birth they are as fresh as a flower, फूल जितने भोले भाले और बिल्कुल खिले हुए फूल की तरह जन्म लेते हैं। इक्का दुक्का ही जब उनको यहाँ पे आकर के दूध ठीक से नहीं मिलता है, या हो सकता है माँ भूखी हो, या वो हो जो व्यवस्था हमारी सामाजिक कल्याण के रूप में जो हमारी व्यवस्था ही बिल्कुल डामाडोल है, पूरी ख़राब है, बिल्कुल जिसको कहते हैं आत्मघाती, मर्डरस, सुसाइडल व्यवस्था है, उसकी वजह से माँ बीमार पड़ी हो। अब बच्चे के अंदर बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती, किसी का पेट फूल रहा है तो किसी को टॉन्सिल्स है, तो किसी को ये, किसी को वो, क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था पूंजीवादियों ने और कैपिटलिस्ट ने खराब की है। जो अचेतन में जीने वाले लोग हैं, जो मृत्यु से डरे हुए लोग हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट परीक्षण नहीं करना चाहते हैं। कार को जब हम सड़क के ऊपर लाते हैं तो पहले हम उसके कम से कम 100 बार उसके परीक्षण कर लेते हैं, तभी हम कार को बेचने के लिए दुकान पे लेके आते हैं, शोरूम में लेके आते हैं। पर कार जब तक ठीक ठाक नहीं हो, उसका हम एक्सीडेंट का भी वो देख लेते हैं, हम उसकी स्पीड देख लेते हैं, हम उसका सब कुछ देख लेते हैं, तब हम उसको बेचने के लिए शोरूम में लाते हैं। जब कोई कपड़ा बाज़ार में बिकने के लिए आता है, पहले हम देख लेते हैं कि वो कपड़ा किस क्वालिटी का है, कितना है, तब हम उसके दाम लगा के उसको हम दुकान पे लेके आते हैं।
कोई खाने का पदार्थ है, पहले हम उसको देख लेते हैं कितनी उसकी फूड वैल्यू है, सब कुछ है, तब जा कर के हम हर चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं, हर चीज़ के बारे में हम परीक्षण करते हैं। पर हम मनोवैज्ञानिक तौर पर परीक्षण क्यों नहीं करते? हम साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते, एक धार्मिकता होने के नाते हम परीक्षण क्यों नहीं करते मृत्यु का? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हम अपने विचारों को रोकने का विचार कितनी तेजी से चल रहे हैं। ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, ये 5 किस्म की वेव्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर। इसके बारे में स्कूलों के अंदर क्यों नहीं इसकी पढ़ाई लिखाई होती? योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच फैमिली, ईच पर्सन's lifestyle. It has to be made compulsive subject for every individual. This is called yoga. इसके अंदर हमारे ब्रेन के अंदर जो भी थॉट्स चलते हैं, जो भी विचार चलते हैं, उनके 5 अलग अलग लेवल्स विज्ञान ने दिए हैं। अब तो वैज्ञानिक तौर पर हमें यह धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे ब्रेन टेस्ट हो सकता है। कोई आदमी ध्यान के अंदर अगर आधा घंटा बैठता है तो उसका ब्रेन चेक किया जा सकता है, उसका ब्रेन। अब ये जितने भी योगी बैठे हैं, इनका सबका टेस्ट होना चाहिए। इनको सबको मशीन के अंदर डालना चाहिए कि इनके विचार कितने कम हो रहे हैं, कितने रुके हुए हैं, कितने नहीं रुके हुए हैं, या ये बकवास कर रहे हैं, सिर्फ 2-2 घंटे बैठ के दिखा देते हैं। This has to be understood very nicely, that this has to be examined. It is a very serious corruption. It is a very serious crime. आत्मिक तल पर यह बहुत बड़ा क्राइम है कि हम 2 घंटे बैठ के दिखा रहे हैं और अपने मन के अंदर हमारे विचार उतने ही तेजी से चल रहे हैं जैसे आम आदमी के चलते हैं। इनका MRI होना चाहिए कि 2 घंटे बैठने से पहले इनकी ब्रेन की वेव्स क्या हैं, और 2 घंटे जब ये बैठ गए थे और बैठने के दौरान में इनकी ब्रेन, इनका माइंड कम हुआ कि नहीं हुआ। मैं इन 5 लेवल्स को एक बार फिर दोहरा देता हूँ। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, ये 5 किस्म की वेव्स हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर हैं। 1 से लेके 3 तक जब ब्रेन वेव होती है तब हम बहुत ही ध्यान के करीब हैं। ठीक वैसे ही जब 3 से लेके 8 तक की होती हैं तब भी हम ध्यान के बहुत करीब हैं, बहुत शांत हैं। जब 8 से लेके 20 तक के लेवल की होती हैं तब हम काम काज में लगे हैं और थोड़े टेंशन में हैं। और जब 20 से लेके 40 तक की होते हैं तब हम बहुत ही हाइपर हो चुके होते हैं। या तो हम बहुत गुस्से में होते हैं, तोड़ फोड़ कर देना चाहते हैं, या हम अपने आप को मार डालना चाहते हैं, या हम अनाप शनाप सपने देख रहे हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, या हम साइंटिस्ट हैं, या फिर हम बहुत गहन मनोवैज्ञानिक हैं और बहुत तीक्ष्ण मन का काम कर रहे हैं। तब 20 से 40 के बीच में, और 40 से अगर हम ऊपर की तरफ है तब हम समझ लो हमारा विस्फोट होने वाला है। या तो हम पागल हो जाएंगे और पागल कर देंगे, या बम फोड़ देंगे, या कुछ भी करेंगे। इस टाइप की मनोदशा होगी। और मैं समझता हूँ 20 से लेकर के 60 तक की मनोदशा वाले आम सड़कों पे घूम रहे हैं आज। आम आदमी के अंदर, आम आदमी की मनोदशा यही है। और मैं समझता हूँ जो वहाँ योगी बैठा है, जो योगा टीचर बना हुआ है, वो भी मन के अंदर उतनी ही विस्फोटक लेके बैठा है। बस उसने सिर्फ इतना किया है कि अपने आप को 2 घंटे बैठने की ट्रेनिंग डाल ली। आपके आगे वो सर्कस करना सीख गया है, थोड़े आसन करना सीख गया है, फ्लेक्सिबिलिटी के आसन कर लेता है, सांस रोकना सीख गया है, बस वो सब करता है। लेकिन उसके हृदय के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया है। हो सकता है उसका हृदय और भी ज़्यादा कुरूप हो आम आदमी से, क्योंकि आम आदमी तो एक टाइम को गुस्सा करके फ्री भी हो जाता है। आम आदमी अगर ईर्ष्यालु है तो उसको माफ़ किया जाएगा, क्योंकि वो ईर्ष्या में लड़ मर लेता है, और लड़ मरने के बाद में वो वापस शांत हो जाता है, वापस माफ़ी मांग लेता है, गिड़गिड़ाने लगता है और वापस प्रेम में आ जाता है। लेकिन ये जो योगा टीचर हैं, ना तो ये स्वीकार करेंगे, ना इनको आप क्रोध करते देखोगे, ना आप इनको कभी सेक्स करते देखोगे, ना आप कभी इनको ये हैं क्या फिर? इनकी ऊर्जा क्या समाधि को प्राप्त हो गई है, या ये बम के गोले अंदर हैं और ये चोरी कर रहे हैं हर चीज़ में? दिस हैज़ टू बी नोटिस्ड। देयर हैव टू बी CCTV कैमराज,
दे हैव टू बी हिडन कैमरास। सब छुपे हुए कैमरे लगने चाहिए इनके ऊपर, कोई भी बाहर वाला कैमरा नहीं लगना चाहिए इनकी आम दिनचर्या और रात की चर्या देखने के लिए। दिस इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस अगेंस्ट द इंटायर ह्यूमैनिटी एंड अगेंस्ट द होल एजुकेशन सिस्टम। सारी शिक्षा प्रणाली के खिलाफ ये बहुत बड़े अपराधी हैं, जितने भी धार्मिक लोग हैं। और नहीं तो ये स्वीकार करें, पहले आम आदमी बनना सीखें, उसके बाद में टीचर होने की घोषणा करें। पहले स्वीकार करें कि नहीं हमने तो हाँ ये सब सीख लिया था, वापस आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 40 साल 50 साल 20 साल बिता दिए होंगे योगा टीचर बनने में, कोई टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं किया, आप पश्चाताप कीजिए, वापस आइए। उससे तो बढ़िया ही है कि आप अचेतन मृत्यु मरेंगे। उससे तो बढ़िया है आप कम से कम क ख ग से शुरू कर रहे हैं, कम से कम एक सही लाइफस्टाइल तो शुरू कर रहे हैं। नहीं तो बेवकूफ़ अपने आप को बनाते बनाते आप ऐसे टाइम तक आ जाएं कि रोने का भी टाइम नहीं, पश्चाताप करने का भी टाइम नहीं बचेगा आपके पास में। तो वो अचेतन मृत्यु भली है कि चेतन जीना भला है, जो अभी धीरे धीरे वहाँ तक जाएगा। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि जो आदमी सच में ही, मान लीजिए कोई सच में ही योगा के अंदर उतर गया है और उसको 3 महीने हो गए, कहा जाएगा कि ठीक है उसकी जो उम्र है 3 महीने की उम्र है, अभी 3 महीने का बच्चा है, बेशक वो 50 साल का क्यों ना हो, लेकिन वो अब 3 महीने का काउंट किया जाए। मान लीजिए कोई आदमी 1 साल से सच में ही योगा कर रहा है, तो कह सकते हैं उसकी 1 साल की उम्र है। पर उससे तो बढ़िया ही है जो 50 साल 60 साल 70 साल दाढ़ी उगाए और वो चंदन का टीका लगाए, लंबे लंबे बाल करके, गेरुआ वस्त्र पहन के, और वो 60 साल कर रहा है, उसकी तो उम्र भी शुरू ही नहीं। So what I mean to say here is that be authentic, because authenticity, sincerity, spontaneity, and not making a fool of oneself, to know about the whole analysis about his being a human being, is the first condition to get into the path of bliss, immortality, the path of Aham Brahmasmi, the path of regaining one's dignified mystic, जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सरलता है, हृदय की जो सरलता है और हृदय की जो पारदर्शिता है, समदर्शिता है, और जो हृदय का जो अनंत अनंत गुना, अनंत अनंत कमलों में खिल जाना, तीसरी आँख का जागरण हो जाना, इतनी सरलता पाने के लिए हर व्यक्ति क्वालिफाइड है। उसको कोई भी इंटर BA B.Ed फलाना ढिमाके की एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक सहज जीवन की यात्रा के अंदर जो प्रभु ने दी है, जो इस पूरी प्रकृति ने दी है, वो उतनी काफ़ी है। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको देखना है। सो वील बी टॉकिंग मोर एंड probably here we go, and let's see how much I would be able to talk, because okay, the light is not yet come, but I will try my best. But then okay, so the first point I put here was the difference between brain and mind, right? Okay, there is difference between deliberate survival programming, and there's difference between consciousness. एक चैतन्य चीज है कॉन्शियसनेस, और एक है डिलिबरेट। डिलिबरेट शब्द का अर्थ होता है हिंदी में जानबूझकर, परीक्षण। तो जो परीक्षण हम किया करते हैं, वो हम जानबूझ के सोच विचार करके किया करते हैं। और उस सोच विचार के पीछे ये होता है कि हम चैतन्य को उपलब्ध हों, कॉन्शियसनेस,
So we never take a conscious decision actually. That is, the decision can be called deliberate. The word is deliberate, not conscious. And whenever we use the word conscious decision, I've used this word many times actually. Conscious decision, I've said it many times. But actually it is not conscious decision, it is deliberate decision. It is volunteering. And consciousness is deliberate decision to achieve consciousness. तो जब भी हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कॉन्शियस डिसीजन, इसका मतलब हम कॉन्शियसनेस की उपलब्धि के लिए कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं, डिलिबरेट डिसीजन ले रहे हैं, बट इट इज़ जस्ट अ वर्ड, बट इट्स अ मिसकंसेप्शन एक्चुअली. सो कॉन्शियसनेस और परीक्षण में फ़र्क है, क्योंकि कॉन्शियसनेस हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम बना नहीं सकते, वो मानव के हाथों की बाहर की बात है. हमारी जो मानवता है वो बहुत चीज़ें क्रिएट कर सकती है, भौतिकवाद में सब चीज़ें क्रिएट कर सकती है, पर चैतन्य को क्रिएट नहीं कर सकती. प्याज के छिलके हम एक एक करके उतारते हैं, आखिरी में शून्य हाथ में रह जाता है. पर अगर हम कहें कि हम शून्य को बनाते हैं, शून्य को हम बना नहीं सकते, शून्य तो पहले से ही है, हम सिर्फ प्याज के छिलके उतार सकते हैं. You see, you have to understand this. Consciousness is there. Consciousness was ever there timelessly. It has got nothing to do with time and place and space. It is everywhere and there everywhere. It has got nothing to do with any kind of creation, because it is actually there as a phenomena. It is not even a phenomena actually. Phenomena is also something actually. It is very subtle. It is a subtle immateriality. But no, it is not even a phenomena. It is void. It is a void. It is energy. If you define energy, you cannot define energy. How can you define energy? ये सिर्फ एक अनुभूति है. इस अनुभूति को आप बना नहीं सकते, इसको क्रिएट नहीं कर सकते, इसको लेबोरेटरी में कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई आप फॉर्मूला नहीं लिख सकते, इसको आप शब्दों में ज्ञात नहीं कर सकते. तो ये एक कॉन्शियसनेस है, ये एक जागरूकता है, एक जागरण है. और सो हियर दिस इज द पॉइंट हियर वी गो इज डिलिबरेशन सर्वाइवल प्रोग्रामिंग. तो जो भी हमको जो प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में जो भी हमको दी गई है, जो प्रोग्रामिंग की गई है, देखिए कंप्यूटर के अंदर हम कोई प्रोग्राम डालते हैं, ठीक हमें भी प्रोग्रामिंग दी गई कि सुबह उठना है, भूख लगेगी, खाना खाना है, नहाना है, धोना है, ठीक है. फिर हम जिस धर्म से जिस तरीके के माहौल में हम भले पड़े हैं, सर्दियों का महीना है तो स्वेटर पहनना है, ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो उसके अनुसार हमें प्रोग्रामिंग दी जाती है. ये सर्वाइवल प्रोग्रामिंग बोले जाती है इसको. क्योंकि अगर हम वैसे नहीं चलेंगे, देखिए सड़क पे चलेंगे तो बाएं साइड में चलेंगे या दाहिने साइड में चलेंगे, क्योंकि हमें किसी से एक्सीडेंट नहीं करना है. ये सब प्रोग्रामिंग है. ये सब हमें अपने शरीर को विकास के लिए, शरीर को ज़िंदा रखने के लिए प्रोग्रामिंग है. अभी छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बातों तक ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग है. अब दिनचर्या, दिन भर में हमें नहाना है, धोना है, हमें जो है अपना खाना खाना है, तो खाने के अंदर अब सारी मिर्चें नहीं डाल सकते हैं ना. तो ये छोटी छोटी हमको शुरू से ही बताया जाता है. हमें अभी जैसे कि अब कोई भी आविष्कार है, बिजली जलानी है, लाइट ऑन करनी है, तो हमें ध्यान से रहना पड़ेगा. तो ये सब प्रोग्रामिंग है. और फिर सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार हमें व्यवस्था के साथ चलना है, ये सब प्रोग्रामिंग के अंदर आता है. ये सब माइंड की प्रोग्रामिंग है. ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी दी जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी दी जाती है. लेकिन जो ब्रेन है वो अलग है. इट हैज़ गॉट कॉन्शियसनेस. ब्रेन हैज़ गॉट नेचुरल कॉन्शियसनेस
विच इज़ नॉट गिवन बाय एनीबॉडी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं दी जाती है, क्योंकि ये पहले से थी, पहले से रहेगी, अनंत काल तक रहेगी। इसका ना तो मरना है ना जीना है, ये है, वर्तमान में है, भूतकाल में थी, आने वाले कल में रहेगी। इसको ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, आप इसको जी सकते हो, आप इसको जी सकते हो, और इसके अंदर आप डूब भी सकते हो, इसके अंदर आप गोता लगा, इसके अंदर आप हमेशा के लिए समाहित भी हो सकते हो। ये चैतन्य है, ये कॉन्शियसनेस है, ये ब्रेन के अंदर है। ब्रेन के अंदर पाइनियल ग्लैंड है, और ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रेन के अंदर सारी की सारी ग्लैंड्स हैं जो हमारी शरीर में हैं, जो योगा की शैली है जो सिखाई जाती है। तो ये सब जितनी भी बातें हैं ये पहले से मौजूद हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, साइकोलॉजी, ये प्रकृति ने हमें दी हैं, पहले से ही दे रखी। सो this is deliberate survival programming, and the other part is consciousness. And I was talking about free will. So free will, and now जब मैं बोलता हूँ पूंजीवाद, लोगों ने ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये परीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर आदमी को स्वेच्छा से जीने का हक ब्रेन में है कि नहीं है। अरे भाई है, ब्रेन में है, वो पहले से ही है। फ्री विल इज बिन गिवन टू एवरीबॉडी, बट इन द मीन टाइम वी हैव बिन destined, you see I am using the word destined, we have been destined to achieve meditation. We have been destined to know ourselves as superconscious beings, consciousness beings. हमारा भविष्य पहले से ही प्रकृति ने तय कर रखा है। आपको मंजूर हो या नहीं हो, आप रास्ते को कितना भी कठिन समझें, कितना भी आसान समझें, लेकिन वो प्रकृति ने पहले ही निर्धारित कर रखा है, और वो है चैतन्य को जानना। आप कितना भी पोस्टपोन करें, कितना भी आँख मीच के जिएं, कितना भी अंधविश्वासों में जिएं, 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 50 जन्म, लेकिन आप निर्धारित हो, आप निर्धारित हो चैतन्य को जानने के लिए। यू हैव बीन डिस्टाइन्ड। आपकी भविष्यवाणी प्रकृति ने पहले ही सुना दी है। क्यों? सागर ने मच्छी को जब पैदा किया था तो सागर ने मच्छी को पहले ही फूंक दिया था कि जब तू डूबेगी तो मेरे सागर में ही डूबेगी। लेकिन अभी कोई मच्छी कितनी भी अड़केली हो, कितनी भी अकड़ू हो, और वो बोले नहीं नहीं मैं तो अपना भविष्य तलाशने चली हूँ, मुझे फला ये करना है, फला वो करना है, मच्छी कितना ही मर्जी सोचती रहे, लेकिन उसे उस सागर में ही डूबना पड़ेगा। उसका भविष्य निर्धारित है। ये प्रकृति और पुरुष में जिसमें हम ये जन्म लिया है, हम जिससे उभर के आए हैं, हम इसमें डूबेंगे ही डूबेंगे, हम इसमें कोई दो राय नहीं है। इट इज़ अ वेरी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। ये तर्कविद है, इट इज़ तर्कविद, ये पूरा तर्क है। 2 + 2 4, मैंने आपको बोला ना 2 + 2 4, 2 और 2 4 ही होता है। आप इधर अन्न बन्न नहीं कर सकते। हाँ, इसकी सीढ़ियाँ अगर ज्ञान करनी है, इसके ज्ञान के बारे में हम ज्ञान जरूर इस ज्ञान को ले सकते हैं। वो योगा का ज्ञान है, और सीढ़ी दर सीढ़ी हम अपने आप को बढ़ा सकते हैं, विकास कर सकते हैं, फैल सकते हैं, फैलाव कर सकते हैं, अपने हृदय को साफ से और साफ बना सकते हैं, और विजय काम क्रोध लोभ मोह को गाली देने के उसको हम जान सकते हैं। और अगर हम उसको गाली देते हैं तो हम अपने रास्ते को कुछ नहीं करेंगे, लंबा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। खाम खाई में अपने को दुख देंगे और 50,000 लोगों को दुख दे के जाएंगे। तो ये प्रभु, ये उस प्रकृति पुरुष के दिए हुए आशीर्वाद है। मैं फिर दोहराता हूँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भय, ये प्रकृति के दिए हुए आशीर्वाद हैं। इनका उपयोग, इनके बारे में जानकारी लेना सीखिए, इनको स्वीकार कीजिए खुली बाहों से।
Okay, I'll be discussing this point next more. So right now I will continue the same video and the same talks again. अभी के लिए सबको नमस्कार और सबको प्रेम, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों पर विचार करें और इसको अनुभूति के अंदर लें और अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएं। मैं दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की बात नहीं करता, मैं अपने आप को बेवकूफ़ बनाने की बात करता हूँ, जिसको कहते हैं स्वबोध। अपना बोध होना ज़रूरी है। हम दूसरे को वही देंगे जो हम अपने आप को देते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रेम। नमस्कार।